سنا تھا، خالد نے کہا، پوری بات کا علم نہیں، یہ خیبر کا واقعہ ہے۔ ابو جریج نے کہا، مسلمانوں نے خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی تو یہودی ایک دن بھی مقابلے میں نہ جم سکے، فریب کار قوم میدان میں نہیں لڑ سکتی۔ خالد نے کہا، یہودی پیٹھ پر وار کیا کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے خیبر میں کیا۔ ابو جریج نے کہا، یہودیوں نے مقابلہ تو کیا تھا لیکن ان پر محمد کا خوف پہلے ہی طاری ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب مسلمان خیبر کے مقام پر پہنچے تو یہودی مقابلے کے لیے نکل آئے۔ ان میں سے بعض محمد کو پہچانتے تھے۔ کسی نے بلند آواز سے کہا کہ محمد بھی آیا ہے، پھر کسی اور نے چلا کر کہا محمد بھی آیا ہے۔ یہودی لڑے تو صحیح لیکن ان پر محمد کا خوف ایسا سوار ہوا کہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ یہودیوں نے شکست کھائی تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور ایسے مظاہرے کیے جن سے پتہ چلتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت سے یہودیوں کے دل لبریز ہیں۔ انہی دنوں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر ہی میں تھے، ایک یہودن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا۔ اس نے عقیدت مندی کا اظہار ایسے جذباتی انداز میں کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مایوس کرنا مناسب نہ سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بشر رضی اللہ عنہ بن البارا تھے۔ یہودن زینب بنت الحارث نے جو سلام بن شکم کی بیوی تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا پیش کیا۔ اس نے سالم دمبا بھونا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دمبے کا کون سا حصہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستی پسند فرمائی۔ یہودن دمبے کی دستی کاٹ لائی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بشر رضی اللہ عنہ بن البارا کے آگے رکھ دی۔ بشر رضی اللہ عنہ نے ایک بوٹی کاٹ کر منہ میں ڈال لی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوٹی منہ میں ڈالی مگر اگل دی۔ مت کھانا بشر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس گوشت میں زہر ملا ہوا ہے۔ بشر بن البارا بوٹی چبا رہے تھے۔ انہوں نے اگل تو دی لیکن زہر لعاب دہن کے ساتھ حلق سے اتر چکا تھا۔ اے یہودن، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ تو نے اس گوشت میں زہر ملایا ہے؟ یہودن انکار نہیں کر سکتی تھی، اس کے جرم کا ثبوت سامنے آ گیا تھا۔ بشر رضی اللہ عنہ بن البارا حلق پر ہاتھ رکھ کر اٹھے اور چکرا کر گر پڑے۔ زہر اتنا تیز تھا کہ اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو پھر اٹھنے نہ دیا۔ وہ زہر کی تلخی سے تڑپے اور فوت ہو گئے۔ اے محمد، یہودن نے بڑی دلیری سے اعتراف کیا، خدائے یہودا کی قسم، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودن اور اس کے خامند کے قتل کا حکم فرمایا اور خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مشفقانہ رویہ اختیار کیا تھا وہ ان کی ذہنیت کے مطابق بدل ڈالا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مروان بن عثمان نے مجھے بتایا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری مرض میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے 2-3 روز پہلے ام بشر بن البارا کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی فرمایا تھا، ام بشر، میں آج بھی اپنے جسم میں اس زہر کا اثر محسوس کر رہا ہوں جو اس یہودن نے گوشت میں ملایا تھا۔ میں نے گوشت چبایا نہیں، اگل دیا تھا، مگر زہر کا اثر آج تک موجود ہے۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری بیماری کا باعث یہی زہر تھا۔ محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ خالد نے کہا، آخر کب تک؟ ابو جریج نے کہا، اس کا جادو کب تک چلے گا؟ اسے ایک نہ ایک دن قتل ہونا ہے خالد۔ ابو جریج نے خالد کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کبھی کوئی ترکیب سوچی ہے؟ کئی بار، خالد نے جواب دیا۔ جس روز میرے قبیلے نے بدر کے میدان میں شکست کھائی تھی، اس روز سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کی ترکیب سوچتا رہا ہوں، لیکن میری ترکیب کارگر نہیں ہوئی۔ کیا وہ ترکیب مجھے بتاؤ گے؟ کیوں نہیں، خالد نے جواب دیا، بڑی آسان ترکیب ہے۔ یہ ہے کھلے میدان میں آمنے سامنے کی لڑائی، لیکن میں ایک لشکر کے مقابلے میں اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ ہم 3 لڑائیاں ہار چکے ہیں۔ خدا کی قسم، ابو جریج نے قہقہا لگا کر کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ولید کا بیٹا بے وقوف ہو سکتا ہے۔ میں یہودیوں جیسی ترکیب کی بات کر رہا ہوں، میں دھوکے اور فریب کی بات کر رہا ہوں۔ محمد کو تم آمنے سامنے کی لڑائی میں نہیں مار سکتے، اور تم انہیں فریب کاری سے بھی نہیں مار سکتے۔ خالد نے کہا، فریب کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ بوڑھا ابو جریج خالد کی طرف جھکا اور اس کے سینے پر انگلی رکھ کر بولا،
किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मौशान का दोस्त हूँ, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफर्रुका डाल देंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि यह यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ, अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए, अबू जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम जा कहाँ रहे हो? अबू जुरैज ने पूछा। मदीने। मदीने? अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, उसे अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसे लगा जैसे आवाजें उसका ताक़ुब कर रही हूँ। मोहम्मद जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सट झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ न कुछ राज जरूर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। जहन उसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अकरमा और सुफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला 2 शुतर सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 300 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों को रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने उस जांबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया कि मुसलमान कराउल गनीम से भी अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले कराउल गनीम पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर कराउल गनीम एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजू था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 1-2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों को अपने सामने खड़ा करके कहा, ये हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें अज़्ज़ा और हबल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को कराउल गनीम के अंदर ही रोककर उन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। अज़्ज़ा और हबल के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वक़ार पर जान कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम अज़्ज़ा और हबल के नाम पर मर मिटेंगे, एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। कराउल गनीम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत कारगर जंगी चाल सोच ली थी। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसे अपने जंगी फहमो फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीरंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीरंदाजों को बुलंदियों पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे उन सवारों की शजाअत पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए थे जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान कराउल गनीम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से इस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद कराउल गनीम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमला करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि मुहासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया,
इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे, इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है? बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी कराउल गनीम से 15 मील दूर अस्फान के मकाम पर थे कि खालिद इस सिलसिला कोह में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजूद जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहाँ से काफिले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन उसने इस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने उस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया, चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहाँ से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 ईस्वी के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर भी नहीं लाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के उस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैं कल से कराउल गनीम की पहाड़ियों में घूम फिर रहा हूँ। खुदा की कसम, मुझे वो नहीं देख सके जिन्हें मैं दिखाया हूँ। मैंने उनकी तमाम नकलो हरकत देखी है। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 300 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में से किसी ने कहा, कसम खुदा की जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो भी मैं नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने के लिए नहीं, उम्रा करने के लिए आए हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहसो मुबाहिसा हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादिर फरमाते थे। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म सादिर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 घुड़सवार मुंतखब किए और उन्हें हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो कराल गनीम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल ना हो। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें और ये दस्ता उन पर हमला करे तो यूं लड़ें कि पीछे को हटते आएं और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीने वालों का हरावल जैश है। उन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता इख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीना में से कोई एक आदमी भी न था जो इस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और दर्रा था जो मसनियातुल मरार कहलाता है। इसे जातुल हंजल भी कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ इस दर्रे में दाखिल हो गए और सिलसिला कोह के ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हरावल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हरावल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी उनके 2-3 सवार दर्रे तक आते थे और इधर उधर देखकर वापस चले जाते।
अगर वो 20 के 20 सवार दर्रे में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि उसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या उसने कूच मुलतवी कर दिया है या उसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शुतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नकलो हरकत जारी रखी। एक दो मरतबा वो दर्रे तक आए और जरा रुक कर वापस चले आए। एक दो मरतबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर उधर गया और वो सवार वहाँ से भी वापस चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे। सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शुतर सवार वापस आया। वो वहाँ नहीं है, जासूस ने खालिद को बताया। क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंजिया लहजे में पूछा। सिर्फ उन इंसानों को देख सकती हैं जो मौजूद हों, शुतर सवार ने कहा। जो नहीं है वो नहीं है, वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हुई तो उसने महसूस किया कि मुसलमानों के हरावल के सवार भी वहाँ नहीं हैं। उसे उनके किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तुलू हुई तो खालिद ने उसी दर्रे से निकल के देखा 20 सवार गायब थे। उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा था। उसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। उसने सोचा कि वो खुद असफान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। उसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजर रखें। दिन आधा गुजर गया था, उसे कोई इत्तला न मिली। मुसलमानों के हरावल के 20 सवार भी नजर न आए। उसे तवक्को थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग उसका एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ता उसके पास आकर रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देखो। क्या देखा है तुमने? गर्द, सवार ने कहा। खुदा की कसम वो गर्द किसी काफिले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को एड़ लगाई और मक्का की समत पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसे जमीन से गर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घात से निकल गया है। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में कराउल गनीम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को उनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से उनके पीछे गए और उनसे जा मिले थे। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और एड़ लगाई। वो कराउल गनीम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सर पर दौड़ाता फिर रहा था। बाहर आ जाओ, मदीने वाले मक्का को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में उसके 300 घुड़सवार उसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं, खालिद ने अपने सवारों से कहा। तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे, वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि उसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस चाल पर अश अश कर उठा था। वो खुद फन्ने हर्बो ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। वो समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हरावल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने उसे कामयाबी से धोखा दिया, उसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि उसके बाप ने उसे ऐसी अस्करी तालीम और तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहलाता था, मगर उसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सालारे आला भी था। उसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने उसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। उसे चंद दिन पहले का ये वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान उसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए थे। उसने ये सोचा ही न था कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। उसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, उन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीर तादाद में हैं। उसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा था और उसे ये खिफ़त भी महसूस होने लगी थी कि उसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान उसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर उसे कुरैश की शिकस्त और मक्का के सुकूत का मुजरिम कहा जाएगा। उसने अपने सवारों को एक रास्ता समझाकर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके 300 सवारों ने घोड़ों को एड़ें लगा दी।
रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोरो गुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी गात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं। खालिद ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा, क्या तुम मक्का के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद ने मदीने के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ हैं? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो?